Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and today I am going to discuss about the second lecture of laws of motion. And now we are going to get start the conservation of linear momentum. How the linear momentum of the objects will remains conserved. So according to this, conservation of linear momentum law. Okay, so we know that also in the first chapter, conservation laws. So if there doesn't act any external force, then the linear momentum of any object will be conserved. मतलब कहने का कि अगर लीनियर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट और उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल वर्क ना करे, मींस जीरो रहे, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है. कैसे? लेट मी डिस्कस हियर. टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी which are moving towards each other. Okay, so these momentums are before collision. Momentums before collision, PA and PB. P equals to M into B. Okay, using this formula, so PA equals to M1 MA into UA and PB equals to MB into UB. In the same sense, after collision, जब ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे तो ये ऐसे होंगे A B. ओके, अब देखिए जब ये कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो ये फोर्स इस पर इस तरीके से FA इस पर B पर फोर्स लगाएगा. In the same sense, B भी A पर फोर्स लगाएगा. It means FB on A. Okay. So after the collision, they will move with the velocity some VA and VB. So momentum after collision, PA dash and PB dash. Okay, so we know that force equals to dP by dt. Okay, so according to this, whenever the collision formed, FAB equals to FBA minus. This is the main funda on the collision. जब कोलिजन होगा तो इनके थ्रू जो फोर्स एक दूसरे पर हिट करेंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तभी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा. और यही हमने डिस्कस किया था. इफ देयर डजंट एक्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स, देन देयर मोमेंटम, ओके, लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व. सो ये क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस, dP अपॉन dt ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू dP अपॉन dt बी ए. ओके, सो dt कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा dP ए बी इक्वल टू dP बी ए. तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए का चेंज मोमेंटम निकालना है. ध्यान रखिएगा, ऐसे यहाँ पर B का निकालना है. तो मोमेंटम में चेंज जो होता है P2 माइनस P1. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का इनिशियल मोमेंटम ये था, फाइनल ये था, तो चेंज हो जाएगा P डैश A माइनस PA. ये माइनस साइन रहेगा यहाँ पर, ये माइनस साइन इसका इक्वल एंड अपोजिट का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा P डैश B माइनस PB. अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस PB डैश माइनस माइनस प्लस PB इक्वल टू P डैश A माइनस PA. ओके, सो डैश वाले टर्म्स एक तरफ कर दीजिए, तो PA प्लस PB ये राइट साइड हो जाएगा और PA डैश प्लस PB
डैश, ये क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ओके, सो ये है मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इक्वल है तो मोमेंटम कंजर्व है। सो देखिएगा, हियर two blocks, two bodies A and B, which are moving towards each other, whose linear momentums are PA and PB, and using here the formula P equals to m into V, mass into velocity. So after collision, body A acts force FA on B, FAB, and the same way body B just equal force acts on the opposite direction, FB on A. So FAB equals to minus FBA, equal and opposite force. Okay, so after the collision, momentums or linear momentums are PA dash and PB dash. So according to this, we know that rate of change of linear momentum is equal to force. So FAB equals to minus FBA. This is the first equation. So using this formula, F equals to dP by dt. So for AB, FAB dP by dt AB, and FBA minus dP by dt BA. So it is equals to dt cancel out this. Okay, and this is the change in momentum. So dP A, ये A के चेंज इन मोमेंटम है और ये B का चेंज इन मोमेंटम है, तो दोनों का चेंज रख दिया। A की वेलोसिटी में देखिए, मोमेंटम में पहले PA था, बाद में PA डैश हो गया, तो चेंज ये हो गया। B का मोमेंटम इनिशियल ये था और फाइनल ये था, तो चेंज ये हो गया। मल्टीप्लाई माइनस साइन करने के बाद फाइनली डैश वाले टर्म से एक तरफ कर दियो, बाकी एक तरफ। सो total momentum after collision will be equals to total momentum before collision. So we can say that here the momentum or linear momentum will be conserved. Okay, so now we are going to get start about the pulley concept. Okay, this is the pulley concept. So in here, first application is this: two masses, one is m1 and another is m2, and here let me consider m1 greater m2. Okay, or in the motion over a massless fixed pulley. Okay, so what will be the acceleration on the blocks, tension on the ropes, and the pressure or reaction force on the pulley? This is pulley. ये कोई pulley है, इसमें दो मास m1 m2, जिनमें m1 ग्रेटर है m2 से, ऐसा मान के कर रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, m2 ग्रेटर मान सकते हैं। okay? किसी मासलेस यानी जो भारहीन है और फिक्स पुली के थ्रू, ओके, ये फिक्स पॉइंट है, पास हो रहे हैं, इस डोरी से बंधे हुए हैं, तो इनमें कितना टेंशन होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, और इसमें कितना प्रेशर लगेगा, मीन्स रिएक्शन कितना लगेगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो हियर this is a greater mass, so its FBD or its real diagram is this. This is M1 and this is M2. M1G, M2G. Both masses are hanging due to this gravity. Okay, so this is weight M1G and this is weight M2G, and here rope is single, so tension सिमिलर। वैसे टेंशन कैसे यूज होते हैं, ऐसे दोनों ही तरफ को यूज होते हैं, बट वेट वाला फोर्स यूज कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट टेंशन यही यूज करेंगे। ऐसे ही दोनों केस में वेट यहाँ पर भी डाउनवर्ड है, यहाँ पर भी, तो इनके अगेंस्ट टेंशन यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, टेंशन दोनों में सेम इसलिए है क्योंकि ये पूरी रोप, पूरा जो धागा है, पूरी डोरी है, वो सेम है। ओके, अब देखिएगा जो बड़ा मास होगा, ओके, आप इमेजिन करके देख लीजिए, एक तरफ 100 kg का ब्लॉक और एक तरफ 60 kg का ब्लॉक बांध दीजिए और देखिए किधर को मोशन होगी, सोचिए। तो जो ज़्यादा वाला है वो छोटे वाले को घसीटेगा, मतलब ज़्यादा वेट जो है वो नीचे जाएगा और कम वेट जो है वो ऊपर जाएगा, सिंपल सा।
तो इसमें एक्सीलरेशन इधर को होगा और इसमें एक्सीलरेशन इधर को होगा। ओके, अब इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने अभी लिफ्ट के प्रॉब्लम में डिस्कस भी किया था। क्या है इनमें एफबीडी का मीन्स? तो देखिएगा यहाँ पर एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 और M2 के अलग अलग ड्रॉ कर देंगे। ओके, देखिएगा M1 के लिए इतना पोर्शन अलग कर दीजिए, दिस इज T, दिस इज M1G एंड दिस इज एक्सीलरेशन एंड हियर T M2G एंड दिस इज एक्सीलरेशन। तो हमने ये डिस्कस किया कि जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हो सारे फोर्स कन्वर्ट करके उसी डायरेक्शन में ले आएंगे। पीछे वाले वीडियो में हमने लेक्चर फर्स्ट में ये डिस्कस कर लिया था कि जैसे कोई बस जा रही है 200 न्यूटन से, हम पीछे लटक गए 2-4 लोग और 70 न्यूटन पीछे को रेजिस्टेंस फोर्स लगाने लगे, तो 200 आगे को था, 70 हमने बैक में लगा दिया, तो कितने से बस जाएगी? सिंपल सी बात है, 200 माइनस 70 130 से जाएगी। आपका यही जवाब होगा। और किधर को जाएगी? जिधर बस जा रही थी, मतलब जो उसका पहले एक्सीलरेशन की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में। यानी एफ नेट कितना आया? 130। ओके, 200 माइनस 70। सिंपल। वैसे हमें एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो आए वो फोर्स पॉजिटिव और जो एक्सीलरेशन के अपोजिट हो वो निगेटिव, ये होगा एफ नेट। और एफ नेट किसके इक्वल करते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन। सो हियर दिस इज पॉजिटिव M1G, दिस इज नेगेटिव माइनस T इक्वल टू एफ नेट। और हम इसको कर सकते हैं M1G माइनस T इक्वल टू मास M1A है, पहले ब्लॉक का कर रहे हैं। ऐसे इसमें देखिएगा इसकी डायरेक्शन में ये है पॉजिटिव, ये है अपोजिट M2G, नेट है F नेट। ओके, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सेकंड ब्लॉक है तो आप डैश नेट कर दीजिए, T माइनस M2G इक्वल टू M2A। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ओके, सिंपल दोनों इक्वेशन बना लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिएगा M1G माइनस T इक्वल टू M1A एंड T माइनस M2G इक्वल टू M2A। ऐड कर देंगे यहाँ, तो M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू A। दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ये जो बॉडीज थी उनका एक्सीलरेशन हो जाएगा। ओके, एंड देखिएगा टेंशन क्या होगा, तो कोई भी इक्वेशन ले लीजिए फर्स्ट और सेकंड। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट M1G माइनस M1A इक्वल टू T। M1A को इधर कर दिया और T को उधर कर दिया और यहाँ A की वैल्यू पुट कर दीजिए, M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू T। इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेकर के, तो ये आ जाएगा 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 दैट इज T। दिस इज टेंशन ऑन द रोप। ओके, जो रोप थी, थ्रेड थी, रस्सियां थी, डोरियां थी, उन पर टेंशन है। अब देखिएगा इनमें प्रेशर कितना होगा पुली में एग्जैक्ट, तो वो हो जाएगा, एक्चुअली पुली तो फिक्स थी, देखिए ऐसे थी ये पुली और इसमें ऐसे टेंशन वर्क कर रहे थे, ये T। ओके, तो इस पर कितना प्रेशर लगेगा, खिंचाव लगेगा, दबाव लगेगा। अब देखिए जैसे हमारे ये दो हाथ हैं, एक हाथ को किसी ने 100 न्यूटन से खींचा, इस हाथ को भी 100 न्यूटन से खींचा, तो हमारी बॉडी में कितना प्रेशर लगा, रिएक्शन 100 कितना लगा, 200 लगेगा ना। तो ये इसी पुली में ये भी टेंशन था, ये भी टेंशन था, तो R माइनस 2T इक्वल टू 0, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन तो कुछ है नहीं, तो R इक्वल टू 2T आ जाएगा और T की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो R की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व होके 4M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। In this we will calculate the acceleration of the bodies, tension on the rope and reaction on the pulley. Okay? So यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसके केस का जो एग्जांपल है नेक्स्ट आगे फर्दर जो भी यूज होंगे एप्लीकेशन, वो प्रोसेस वहां पर भी यूज होगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, दिस इज आवर एग्जांपल। This is a 12 kg and this is 8 kg.
blocks attached through it. Okay, so initially तो हम इस पर सिर्फ 3 चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, A, T and R. ओके, सो देखिएगा 12 kg बड़ा है तो 12g डाउनवर्ड, 8g जी है। टेंशन दोनों में ये रहेगा और इसका एक्सीलरेशन नीचे को और इसका ऊपर की तरफ। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर हम दोनों के एफबीडी भी अलग अलग बनाए दे रहे हैं। यहीं पर 12g t और ये एक्सीलरेशन, और इसका हो जाएगा t 8g और ये एक्सीलरेशन। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 12g माइनस टी इक्वल टू 12a, पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट, नेट फोर्स m इंटू a, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे इसके अकॉर्डिंग t माइनस 8g इक्वल टू 8a, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व कर देना है। तो 12g माइनस टी इक्वल टू 12a, t माइनस 8g इक्वल टू 8a, ऐड कर दीजिए तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा। 12g में माइनस 8g ऐड करेंगे तो 4g, और 12 और 8 20, तो अपॉन 20 आ जाएगा। a की वैल्यू g बाई 5। अब देखिएगा सारी वैल्यूज हम g की वैल्यू सारे a टी आर कैलकुलेट करने के बाद पुट करेंगे, इजी रहेगा। ओके, बाई इक्वेशन फर्स्ट 12g माइनस टी इक्वल टू 12, a की वैल्यू g बाई 5। अब देखिएगा प्रॉब्लम क्या होती, अगर हम यहाँ g की वैल्यू रख देते तुरंत, तो इस इक्वेशन में पुट करने के लिए यहाँ पर भी g सॉल्व करना पड़ता, g का मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इजी वे पे आप इसको सॉल्व करिए, पहले g के फॉर्म में ही वैल्यू पुट कर दीजिए और फाइनली जब सारे सोल्यूशन निकाल लीजिए तो इसके बाद g की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो हियर 12g माइनस 12g अपॉन 5 इज इक्वल टू t को उधर कर दिया तो ये आ जाएगा 60 minus 12, 48g upon 5. This is tension, and you know that in this case this is pulley and this tension. So here R equals to 2t. Okay, तो ये आ चुका है। या डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो 2 into 48g upon 5, 96g upon 5, इतना। अब देखिएगा यहाँ पर हम a की वैल्यू है g बाई 5, t की वैल्यू है 48g अपॉन 5 एंड r की वैल्यू है 96g अपॉन 5। यहाँ g की वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 अपॉन 5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 48 इंटू g की वैल्यू 10 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई 480, 96। टेंशन हो या रिएक्शन हो इनके यूनिट न्यूटन ही होते हैं, और ये हो जाएगा 960 अपॉन 5, 192 न्यूटन। ओके, अब हम इसमें जो क्वेश्चन नेक्स्ट यूज करने जा रहे हैं वो ये है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक्स इन द फर्स्ट 1 second. Let what will be velocity and distance traveled by 12 kg block in 1 second, और ये कह सकते हैं at the end of 1 second, 2 second, 3 second, whatever you, ओके, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पर पहली चीज की वो ये कंफ्यूज करने के लिए देगा 12 kg या 8 kg, जो भी एक दे दे, इसका मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर अगर 12 kg के लिए जो आया वो 8 kg के लिए अलग होगा, सिमिलर होगा। ओके, अब देखिएगा कैसे। अब जैसे यहाँ से ये बॉडी स्टार्ट किया, ये था, ये था 12g एंड दिस इज 8g। यहाँ से जब ब्लॉक स्टार्ट करेंगे डाउनवर्ड आ रहा था, ये अपवर्ड जा रहा था, तो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया और मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में जब टाइम यूज हुआ
तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v थी और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x। ओके, ये ब्लॉक ऐसे ट्रेवल करते हुए यहाँ पर आ चुका होगा, सेम डिस्टेंस होगी, सेम वेलोसिटी होगी। तो देखिएगा a की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू यूज होगी। ओके, सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी क्या होगी, अभी हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो u0 a की वैल्यू है t इंटू 1, तो v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड डिस्टेंस कितनी लेंथ ट्रेवल करेगा ये, तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो x इक्वल टू 0 प्लस 1/2, a की वैल्यू 2 है और t की वैल्यू 1 का स्क्वायर। सो x इक्वल टू 1 मीटर, इतना आ जाएगा। ये हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। एंड आफ्टर दैट ओके, दिस रोप हैज बीन ब्रेक डाउन, क्या हो जाती है, ये टूट जाती है। ये क्लियर हो गया। अब यहां इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, at the end of 1 second in this motion string has been break down, so what will be the final velocity and distance travel in next 1 second? Okay, at the end of 1 second, या आपने जो भी लिया हो स्टार्ट में, वो हमने 1 सेकेंड लिया था, string has been break down, then what will be length and velocity in next 1 second? हमने फिर एक नेक्स्ट 1 सेकेंड, मतलब ये स्टार्ट किया था मोशन, ऐसे चल रहे थे, जैसे 1 सेकेंड चले तो ये यहाँ तक आ चुका है और ये यहाँ तक जा चुका है, और अब स्ट्रिंग क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ओके, यही मेन कॉन्सेप्ट है। हर टाइप के क्वेश्चंस में आगे जो यूज होंगे एप्लीकेशन, उनमें ये जरूर जोड़ देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहाँ पर भी क्लियर होगा। तो अब यहाँ से स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है, तो अभी हम यहाँ तक के लिए, ये था ऐसे आया, यहाँ पर हमने वेलोसिटी कितनी निकाली, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये वाला ब्लॉक यहाँ पर गया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये ब्रेक हो जाती है। अभी तक तो ये एक्सीलरेशन से आ रहे थे और ये भी जा रहा था ए से, लेकिन जब ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी तब क्या होगा, तब दोनों ही मास अंडर ग्रेविटी गिरेंगे। अब यहाँ एक्सीलरेशन क्या होगा, g, ये वाला भी नीचे ही आएगा, ये क्या होगा, g। भाई दो लोग हैं, एक 100 kg का है एक तरफ और दूसरा तरफ 60 kg का है, दोनों लटके हुए हैं, तो ज्यादा वाला नीचे को घसीटेगा और कम वाला ऊपर जा रहा होगा। लेकिन रस्सी अगर टूट जाए तो क्या होगा, क्या एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, दोनों ही लोग नीचे को ही जाएंगे, दोनों ही ब्लॉक नीचे को आएंगे। लेकिन अब कैसे गिरेंगे, अब अंडर ग्रेविटी गिरेंगे। ओके, जैसे कोई 10 माले की बिल्डिंग से कूद जाता है तो अंडर ग्रेविटी गिरता है, उसी तरीके से ये वाला भी अंडर ग्रेविटी और ये वाला भी अंडर ग्रेविटी, क्योंकि अब इन दोनों में कोई आपस में कनेक्शन नहीं रहा। तो अब देखिएगा, जो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी थी नेक्स्ट मोशन के लिए, फॉर नेक्स्ट मोशन, जो यहाँ फाइनल थी वो किसका वर्क करने लगेगी, इनिशियल का। ये 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ए डैश कितना हो गया है, जी, जी का मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना ले लिया गया, 1 सेकेंड। मान लीजिए आप यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए 2 सेकेंड ले लीजिए, हमने 2 सेकेंड ले लिया। ओके,
सो व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, सो यहाँ से अब ये कितना कवर करेगा, तो v डैश और ये x डैश, तो ये आ जाएगा। देखिएगा अब पहले हम v डैश यूज कर लें, u डैश प्लस a डैश t डैश, v डैश इक्वल टू 2 प्लस ये है 10 इंटू t की वैल्यू है 2, तो v डैश की वैल्यू 20 प्लस 2 22 मीटर पर सेकेंड, और x डैश इक्वल टू u डैश t प्लस हाफ a डैश t डैश स्क्वायर, सो x डैश इक्वल टू u डैश t डैश, ओके, प्लस 1/2 a डैश 10 है और t डैश 2 का स्क्वायर, सो x डैश इक्वल टू ये 4 आ जाएगा, और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, सो x डैश इक्वल टू 24 एंड लेंथ का यूनिट मीटर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से कैसे जब एंड में जब तक डोरी ब्रेक नहीं होती स्ट्रिंग तब तक जो फाइनल वेलोसिटी होती है, और जब डोरी ब्रेक हो जाती है ये स्ट्रिंग तो वहां के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी कवर करने लगता है, एक्सीलरेशन अंडर ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाता है, टाइम वगैरह जो भी दिए जाए वही यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ 2 सेकेंड लेट कर लिया तो वो यूज करेंगे, फर्दर फिर वही इक्वेशन ऑफ द मोशन यूज कर लेंगे। ओके, तो ये केसेस होगा। नाउ नेक्स्ट केस, whenever one block placed at the table, this is M2 and another will be withdraw it which is hanging through the connected by a rope। ओके, सो देखिएगा इन दिस केस में जैसे कोई टेबल है, यहाँ पर कोई मास रखा हुआ है, इस स्ट्रिंग की हेल्प से M1G ये मास हैंग कर रहा है, तो इस केस में आप जानते हैं कि जो टेबल में रखा हुआ मास है वो रखे रखे तो इसको विड्रॉ नहीं कर सकता, तो इसमें मोशन यही हो सकती है ये तो टेंशन होगा, यही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब ये डिपेंड करता है एक तो ये कि इसका मास जो है इससे ज्यादा हो जाए तो ये घसीट लेगा, दूसरी चीज ये टेबल में रखा हुआ मास पर भी डिपेंड करता है कि अगर बहुत पीछे रख देंगे तो ये ज्यादा होने के बावजूद भी घसीट भी सकता है और नहीं भी घसीट सकता, बट ये अगर ये ज्यादा भी है और इसको और टेबल के किनारे खिसका के रख दें बिल्कुल जस्ट पुली साइड में तो ये गिर भी सकता है। जैसे ये देखिएगा ये मार्कर है, इसको हाथ में ज्यादा पोर्शन इसमें हाथ में रखे हुए तो नहीं गिर रहा, अगर हम ज्यादा लटका देते तो गिरने लगेगा, तो रखने पर भी तो डिपेंड कर रहा है। ओके, तो देखिएगा इसके अकॉर्डिंग इसका यह BD हो जाएगा M1G T एंड दिस इज एक्सीलरेशन, और इसका हो जाएगा T, ये T है और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, तो देखिएगा इसका इक्वेशन आ जाएगा इसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये नेगेटिव, F नेट और F नेट M1A। यहाँ पर क्या हो जाएगा T माइनस इस तरफ कोई भी फोर्स नहीं है इक्वल टू M2A। अब यहीं पर अगर नेक्स्ट केसेस में जब हम फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे तो पता होगा, जब ये इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ कुछ फोर्स होगा म्यू M। ओके, लेकिन अभी यहाँ स्मूथ सरफेसेस के लिए है, यहाँ फ्रिक्शन के बारे में हम कोई भी चीज डिस्कशन नहीं कर रहे। ओके, तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके माइंड में आए कि यहाँ पर G तो वेट ऐसे होता है M2G, बट जैसे ये टेबल में रखा है तो ये फिनिश हो जाएगा। ओके, तो इनको बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड M1G माइनस T इक्वल टू M1A एंड T इक्वल टू M2A, इनको ऐड कर देंगे तो M1G अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू A आ जाएगा, और A की वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकेंड में, ज़्यादा इजी रहेगा, तो T इक्वल टू M2 इंटू M1G अपॉन M1 प्लस M2, इट विल बी टेंशन। अब देखते हैं यहाँ पर प्रेशर क्या होगा इस पुली में। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, देखिए ये वाला ब्लॉक में ऐसे टेंशन है, ये वाले ब्लॉक में ऐसे टेंशन है, ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये पुली है, तो इसमें रिजल्टेंट डायरेक्शन में ऐसे लगेगा
प्रेशर और रिएक्शन। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है आपको, ओके। R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ थीटा 90 डिग्री है और ए और बी टी और टी है। तो R इक्वल टू अंडर रूट 2t स्क्वायर, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो t अंडर रूट 2 आ जाएगा। इस केस में ये आएगा रिएक्शन ऑन द पुली, ओके। आप इसका भी एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये ब्लॉक है, ये है 20 kg और ये है 10 kg, तो ये हो जाएगा 20g, ओके। ये 10 kg ब्लॉक है, तो इसके हिसाब से इक्वेशन बन जाएगी 20g माइनस टी इक्वल टू 20a। ये पहला FBD देखिएगा, ये t, ये 20g एंड डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, सो 20g माइनस टी अपोजिट है इक्वल टू 20a। और इसका क्या हो जाएगा, ये है t सेकेंड ब्लॉक के लिए और ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, तो t इक्वल टू m2a 10a। इनको सॉल्व कर दीजिए, तो 20g इक्वल टू 30a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2g/3। अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो t इक्वल टू 10 इंटू 2g/3, तो 20g/3। और r क्या होता है, t अंडर रूट 2, तो 20g अंडर रूट 2 अपॉन 3। g की वैल्यू 10 यूज कर दीजिएगा, ये न्यूटन में, ये न्यूटन में और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ओके। सो नाउ दिस इज द लास्ट application of the Pauli concept for inclined plane. Application third, inclined plane. देखिएगा ये M2 ब्लॉक है और ये पुली के थ्रू इस तरीके से अटैच्ड है। ऐसे कोई मास है M1 और ये एंगल थीटा है। अब देखिएगा इसमें दोनों तरफ को मोशन हो सकती है। अगर M1 इधर को घसीट सकता है तो ये ऊपर को जाएगा, अगर ये इधर को घसीटने लगा तो ये ऊपर को जाएगा। तो at what condition this situation should be created? So here look, this is the M1 and M2, so this is M2 and this is pulley and here attach this mass M1, so weight M1g, this is angle theta, okay. So here just we draw the component, this is tension and this is the weight of M2, that is M2g, okay. अब देखिएगा ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये एंगल जितना ये है उतना ही ये होगा, ओके। देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे है, ये थीटा है, हम ये चेक कर रहे हैं ये एंगल, तो देखिएगा ये 90 होगा, क्लियर। जब ये 90 होगा तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये इस पर नॉर्मल है, नॉर्मल वाला एंगल ये पूरा 90 होगा, तो इतना कितना बचा, 90 माइनस थीटा, दैट इज थीटा। तो अब आपको बार बार ये नहीं करना, जितना एंगल ये हो उतना एंगल इसको ले देना है, ये क्लियर। सो हियर this is M2g cos theta and this is horizontal component। horizontal वही होता है जिस बेस से एंगल अटैच होता है, ओके। क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है ये वर्टिकल, तो बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस वाला वही होगा जिससे बेस एंगल अटैच होगा, और वर्टिकल दूसरा वाला तो M2g sin थीटा। अब देखिएगा दो कंडीशन बनेगी, इफ ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है, M1g greater M2g sin theta, then acceleration will be from M2 to M1, मतलब इधर से ऐसे जाएगा, क्योंकि अब ये ज्यादा हो गया इससे तो उधर वो घसीट लेगा। और अगर ऐसा नहीं था, इफ M1g लेस देन M2g sin थीटा, मतलब ये ज्यादा हो गया इससे, देन अब क्या हो जाएगी, ऐसे मोशन हो जाएगी फ्रॉम M1 टू M2। तो हम पहली कंडीशन को ही लेके सॉल्व कर दे रहे हैं, आप दोनों सॉल्व कर सकते हैं, और जब एग्जांपल दिया जाएगा प्रॉब्लम होगी तो उसमें आपको पता होंगे मासेस 10 kg 20 kg में से कैसे क्या आ रहे हैं, वो एग्जांपल से डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर
एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये ले रहे हैं और यहाँ पर वही केस कि m1g ग्रेटर m2g साइन थीटा। तो देखिएगा इसका FVD हो जाएगा T m1g और ये एक्सीलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी m1g माइनस टी इक्वल टू m1g m1a। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड पार्ट है ये वाला, ये t है, ये m2g साइन थीटा है और ये एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वाला पॉजिटिव t और अपोजिट वाला नेगेटिव m2g साइन थीटा इक्वल टू m2a। इट विल बी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, t माइनस m2g साइन थीटा इक्वल टू m2a। ऐड कर देंगे तो m1 माइनस m2 साइन थीटा जी दोनों में है, ऐड कर रहे हैं, माइनस की वजह से माइनस आ गया है, m1a प्लस m2a, तो m1 प्लस m2a। इट विल बी एक्सीलरेशन ऑन द ब्लॉक्स, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, एंड बाय इक्वेशन फर्स्ट m1g माइनस m1a, m1 माइनस m2 साइन थीटा g अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू t। देखिए इसको मैंने इधर कर दिया और t को उधर कर दिया और a की वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे जब तो ये आ जाएगा m1 स्क्वायर g प्लस m1 m2g माइनस m1 स्क्वायर g माइनस माइनस प्लस m1 m2g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। t आ जाएगा m1 स्क्वायर जी कैंसिल, सो t इक्वल टू m1 m2g कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। दिस विल बी टेंशन एंड द सेम वे नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम, देन हाउ वी विल डिस्कस द रिएक्शन ऑन द पुली। तो देखिएगा आप इसमें रिएक्शन फोर्स या प्रेशर ऑन द पुली कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा सिचुएशन ये थी, ऐसे था, ये थीटा था, यहाँ पर पुली थी, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इधर वाला टेंशन था ऐसे, तो हम ऐसे इसको शो कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में ये टेंशन है, इस डायरेक्शन में ये टेंशन है। ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ का एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा, और यहीं पर होगा आर पुली में ही, तो आर इस तरह वर्क करेगा। तो देखिएगा ये टेंशन है ऐसे, तो आप ऐसे ले सकते हैं, ये टेंशन ऐसे, ये टेंशन है दोनों तरफ, तो आप ये वाला ले सकते हैं। इनके बीच का 90 माइनस थीटा एंगल है और यहाँ रिजल्टेंट ये रिएक्शन फोर्स आर है। तो आर इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू टी कॉस 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। सो इट विल बी इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर sin थीटा। 2t स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो t बाहर आ जाएगा, 2 1 प्लस sin थीटा। ये रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं इसको। ओके, देखिएगा मान लेते हैं ये 12 kg ब्लॉक है और यहाँ पर 8 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, एंगल 30 डिग्री है। सो कैलकुलेट करना है ए टी एंड आर। तो देखिएगा अब इसके कंपोनेंट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12g, ध्यान से देखिएगा, और ये 8g का हो जाएगा, 8 kg का 8g, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये 30 डिग्री होगा, हमने डिस्कस किया था, जितना होगा ये उतना ये 8g cos 30 और ये आ जाएगा 8g sin 30। ये इनमें टेंशन है। अब चेक करना है कि ये ज़्यादा है कि ये, देखिएगा 8g sin 30 मतलब 8g इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 4g। तो ऑब्वियसली 12g और 4g में से कौन बड़ा है, आप ऐसे लिख सकते हैं 12g इज ग्रेटर देन 8g sin 30।
ओके, और आपने इसको सॉल्व करके चेक कर लिया कितनी वैल्यू इसकी 4g, तो 12g 4g से तो ग्रेटर है। अब आपको यहाँ समझ में आ गया, वहां पर क्या था, अननोन वैल्यू के फॉर्म में था m1 m2, तो आपको समझ में कम आ रहा था। सो 12g इज ग्रेटर देन दिस। सो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम 8 kg टू 12 kg, इस वाले से इधर की तरफ। तो ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। क्लियर? तो अब देखिएगा इसका ये t 12g और इसका t एंड ये 4g। ये मास कितना था, यहाँ मास था 8 kg, ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ मास कितना था 12 kg। ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, ये एक्सीलरेशन, तो ये आ जाएगा 12g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर t माइनस 4g इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन में मत रहिए, हमने 4g डायरेक्ट वैल्यू पुट की है। आप चाहें तो इसको लिखें 8g sin 30, ओके, इक्वल टू 8a, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ 8 रखा यहाँ 4 क्यों रखा। वो sin 30 की वजह से ऐसा आ गया, कुछ भी हो सकता था ऐसे एंगल चेंज होने पर। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनली इसका वर्क फिनिश हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 12g माइनस टी इक्वल टू 12a, t माइनस 4g इक्वल टू 8a, ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8g इक्वल टू 20a, तो दैट इज ओके। So it will be equal to, you can solve this 8 ये 2g upon 5, we can write this 8, and by equation first 12g minus t equals to 12a upon 2g by 5, okay. So 12g minus 24g upon 5 equals to t. This will be equals to 60g minus 24g upon 5 is equals to t. So t is equals to 36g upon 5. Okay. And in this case, r equals to t under root 2 1 plus sin theta. Theta is 30 degree. So r equals to t 36g upon 5 under root 2 1 plus 1 by 2, 36g upon 5 under root 2 into 3 by 2, okay. So 36g upon 5 root over 3, g की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए और फाइनली ये आंसर सॉल्व हो जाएगा, ओके। सो दैट्स व्हाट द पुलिस एप्लीकेशन, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।